Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Balram. Good morning, my dear friends farmers. I'm Bharat, and today it's Sunday. And why I'm making this kind of videos that I'm just talking in English, it's quite simple that so many farmers or so many people who are asking to me, कि Bharat bhai, what exactly do apart from making the videos? So let me clear you one thing. By my profession, I'm just talking like this because my profession is to teach to the students. I was the professor in a college, which I already told you before. This is the certificate assistant professor NET qualified. It is for teaching in college, and that was the RPL college where I used to teach. And this is my coaching class where I teach to the students. Still the classes is going on. And you know why I'm making this kind of video? I just want to clear one thing, that so many people, actually that's not my field. I'm just here, I'm just passing from there, and I just find out the good locations, that we have the good locations here. And there is also so many other we have the fruits too, mangoes and all these things we have. So why I'm talking to you like this? Because the reason is quite simple, that people ask me so many times that why using the demand and supply in making the videos in Mandi, that how many arrivals you are showing, and what the effect of the less arrivals of onions or garlic, whatever we have in Mandis. Especially I make the two videos. That one is onion video and another is the garlic video. And for that I do the research on that one. I'm not doing the research ultimately, that how the garlic will be, you know, we can sow and we can benefit it a lot from that one. Is I do believe the one thing, if whatever I'm doing, I need to research on that things particularly. Likewise, what if we have the supply is less, then what effect will be happen on demand? The one thing. And the second thing is that supply is more, than what effect will be happen on demand. So that's a vice versa rules we have, demand and supply rules. We all know about that one. Is that why that only the reason that I talk too much about that what is demand and supply. And I know that among of you, a very few farmers are able to understand what I'm telling, and even I'm just talking you in English. That's only reason that I want to give the reason for that one, is that please, you know, if you are the farmer, we'll know about that one, is that, but we need to educate our child, we need to educate to our son, we need to educate to our daughter. You know, what exactly happen nowadays, you all know that one, is that kind of condition is going on, that so many in areas of we can say that sectors, likewise job sectors, or whether it's a business sectors, now the farmers are growing, they are booming. But unfortunately I saw so many areas also which is really backward areas. Means the farmers are not focusing too much on their children's, about their educations. So I do believe that I just want to make this video only because of that they must educate to their children. They must focus on their children, that they should get the good educations. Not only that, they need to have the job in future. Because we you know why I'm telling to you, because education is the one of the part that we need to have to our children. And it's not only the kind of only educated that we think only that our son or our child is, our daughter is going to the school, and that is not kind of the education I'm telling to you. I'm just telling to you, you need to give the real educations. And what the mean of real education, I just want to clear one thing. The real education means is quite simple, that the daughter or whether your son, they must understand the education, as well as they need to understand that what our what you means whom I'm addressing to the farmer, that my father or my mother, how they are working in field, they must know about that one is also. How these crops can be grown, that they must know about that one is also. Means apart from the education, they know about these things, the little bit things, but what exactly they are nowadays they are very far from that kind of culture. Means they are forgetting the crops, how to grow the crops. They are forgetting how to grow the crops, how we can put the garlic in field, how we need to grow the potatoes, how we need to grow the onions. So they must know everything. But the second thing is that I do believe also that they must have the good educations also. Education doesn't matter that they should do the work in big companies, they should work in a different kind of areas. They can also have the good career in agriculture also.
means that can be also the business. I do believe that one is. And why I'm just talking like this again I'm telling to you, because my profession also, that I'm the teacher, I'm the professor, I'm showing something before also, that my certificates too. And you know, sometimes happen that people actually imposing some kind of arguments on me too, that what exactly that person do, why he's making the videos in Mondays on these kind of things. So the one thing, it's very clear that to making the video is my hobby, and that's why I'm just making the videos. You know, before not making the videos of Monday, I used to go to the college. Means I was the professor, already told you about that one is, that I was the college professor. And then I just stop. What can I say, that I stopped to teaching there in college, and then I started the coaching classes. And that coaching classes, before the corona I had a coaching classes too, but that was in Indore, in Bengali Square area. But after the corona that came, and so many hurdles, so many problems I got that at that time, that I just felt that the education sector is the one sector which is hampered the first, which is the getting the problem the first. When the corona came, the first, that sector actually closed by the government. And so many people also oppose that one is, that we need to stop that kind of educations too. Then I just believe that after the corona, that I must have the at least 2 or 3 work in my handle, means in my bucket I must have the 2 or 3 works. So I started working in company too as area manager. Still I'm there. So many works I have. And to starting the coaching classes again, I need to do something, that I don't want to go to the college, because my college time was morning 7 to around 5 o'clock, 3:40 something. So to reach at home, it is around 5 o'clock I came at home. Then I decided, how can I start the coaching classes if I will just put too much time in college. Then I decided, okay, I need to start the coaching classes, I need to stop the teaching in the college. Then what exactly happened, some days what happened, that the coaching timing is 3 o'clock to around 7 to 8 o'clock evening time. But in morning time, what I need to do, because morning time what exactly happened, my timing was that I need to awake around 7 o'clock in the morning when I was going to the college. But what exactly happened, that sometimes happen that 7 to again I just goes to 8 o'clock morning wake up time, then at 8:30, then 9, then 10. I just not shocked about that one is, what exactly happening is that I'm just killing the time. Then I decided I need to make the video in Monday also, because the one thing is that that's my hobby. And literally I'm just telling you, I'm feeling very good when I'm making the videos in Monday, because I'm connecting so many farmers. They are really very good at me, and they told to me that when you will be in our area, please come at our village, just see our village. There are a lot of things you can see near our village too. And so that's really one of the good thing that I got, that the people are really loving to me. So that is ultimately the video. And I know that so many students, I am not a student, I'm extremely sorry about that one is, that so many farmers can be think about that, why he just make such kind of videos. आखिर इसने ये इंग्लिश सारी बना दिया, वीडियो क्यों बनाया? आपके दिमाग में हो सकता है प्रश्न, हो सकता है, और मैं चाहता हूँ ये प्रश्न हो आपके दिमाग में। मैंने सिर्फ इसलिए बनाया ताकि मैं आपको ये बताने वाला था, क्योंकि बहुत सारे मंडी में ऐसे लोग भी आते हैं, किसान आते हैं, अच्छे किसान भी आते हैं, और कुछ ऐसे भी आते हैं कि आखिर ये क्यों मांग या सप्लाई, या ये क्यों इतनी रामायण गाता है। तो भाई सीधी सी बात है, मैं एक टीचर भी हूँ कहीं ना कहीं, मैं एक शिक्षक भी हूँ, मैं किसी कॉलेज में पढ़ाता भी था, और वो सर्टिफिकेट मैंने आपको दिखाए भी हैं कि मैं एज ए कॉलेज में प्रोफेसर था। और कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रूफ देना पड़ता है कि ये सिर्फ आपकी हॉबी है, कि आप कहीं ना कहीं आप वीडियो बना रहे हैं, मेरी हॉबी है जो कि मैं बना रहा हूँ। मैं कॉलेज में प्रोफेसर था, तो 7 बजे से लेकर के मैं मतलब 3:30-4 बजे तक कॉलेज में रहता था। उससे पहले मैं स्कूल में था, उससे पहले मेरी कोचिंग क्लास भी थी, और अभी भी मेरी कोचिंग क्लास है। कनाड़ा, अगर कोई आसपास के गांव के एरिया का है, कनाड़ा के आसपास का, तो A to Z कोचिंग क्लास करके जो मेन चौराहा कनाड़ा, वहाँ तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो सामने A to Z कोचिंग क्लासेस दिखा हुआ, तो ये मेरी कोचिंग क्लास है, और इसमें मैंने नंबर अभी अपना हाइड कर दिया है। कहीं ना कहीं सुनील टेंट हाउस आप जो देख रहे हैं उसी के जस्ट पास में, और इधर चौराहा आ जाता है इस साइड। तो आप अगर किसी बच्चे को एडमिशन लेना अपने यहाँ पे, तो अभी एडमिशन चालू है अपने यहाँ पर, तो आप आके ले सकते हैं एडमिशन। ये इस तरह की हमारी कोचिंग क्लास है, मैं आपको बता देता हूँ। ये कोचिंग क्लास लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, और ये मैंने नीचे चौराहे से बताया था। और कौन सी क्लास कहाँ लगती है वो भी मैं आपको बता दूँ। यहाँ लगती है क्लास 8, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगती है क्लास 8 के बच्चे बैठते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पर।
और यहाँ कहीं ना मेरी सीटिंग रहती है जहाँ इंक्वायरीज़ के लिए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर भी 7th वाले कुछ बच्चे हैं, 5-7 बच्चे हो जो कि यहाँ बैठते हैं। उसके अलावा यहाँ पे लगती है 6th की क्लास, यानी सारी क्लासेस सेपरेट लगती है अपने यहाँ पर। और अगर मैं इधर आके बताता हूँ आपको तो ये 9th वाले बच्चे बैठते हैं कहीं ना कहीं इस वाली क्लास में। और इधर चलते हैं हम लोग तो इधर बैठते हैं 10th वाले बच्चे, कहीं ना कहीं 10th की क्लास है कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे। और फिलहाल अब चलते हैं नीचे की तरफ, तो हर एक अलग अलग सेपरेट क्लासेस है। हमारे पास कंप्यूटर क्लासेस भी हम लोग चालू करने वाले हैं। तो नीचे की तरफ जब अपन आते हैं तो यहाँ वाला जो रूम दिख रहा है इसमें हम पढ़ाते हैं छोटे बच्चों को, जो KG वाले हैं या फर्स्ट वाले हैं। वो दरी टाट जो आपको दिख रही है बिठा करके उनको कहीं ना कहीं पढ़ाया जाता है। उसके बाद ये सामने वाला जो रूम दिख रहा है, इस वाले रूम में कहीं ना कहीं 5th क्लास कहीं ना कहीं लगती है। यहाँ पर 5वीं वाले बच्चे बैठते हैं। और फिर थोड़ा और अगर आगे चलते हैं इस साइड तो यहाँ पर एक हॉल है, एक क्लास यहाँ पर भी लगती है जो आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे 4th वाले बच्चे बैठते हैं कहीं ना कहीं। और ये वहाँ पर ही जो आपको दिख रहा है इसमें कंप्यूटर रूम बनने वाला है। ये जो रूम दिख रहा है आपको, ये कंप्यूटर रूम बन जाएगा, इसमें कंप्यूटर लग जाएंगे। उसके अलावा इंग्लिश स्पोकन यानी इंग्लिश बोलते भी हम लोग सिखाते हैं। तो अगर कोई बच्चा अगर एडमिशन जो इस कनाडी एरिया में अगर कोई पेरेंट्स देख रहे हैं या कोई किसान देख रहे हैं, उनके बच्चों को अगर आपको पढ़वाना है, आपको पढ़ाई करवाना है, स्टडी करवाना है, तो आप हमारे यहाँ पे उसको लेके आ सकते हैं। अभी एडमिशन चालू है हमारे यहाँ पर। बाहर का लोकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया था, सुनील टेंट हाउस के सामने है। तो यही हमारी कोचिंग क्लास है। इस साइड से भी आप देखेंगे इस तरह का लोकेशन है। और ये मेन कनाडा चौराहा जो आपको दिख रहा होगा, ये मेन कनाडा चौराहा, उसी के जस्ट सामने सुनील टेंट हाउस यहाँ पर, उसी के सामने कहीं अपनी कोचिंग क्लास है, A to Z कोचिंग क्लासेस। यहाँ पर अपनी कोचिंग क्लास है जहाँ हम लोग, मतलब मेरी एक टीम है जहाँ 8 से 9 टीचर हैं हम लोग, और सेपरेट क्लासेस लगती है। मतलब हर एक क्लास अलग अलग क्लास में बैठती है। तो अगर किसी को एडमिशन्स लेना हो या मैं अगर आपसे बोलूँ कि एजुकेशन्स को अगर अच्छा करना हो तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने वीडियो इसीलिए बनाया कि कहीं ना कहीं मैंने एक ऑब्जर्वेशन निकाला है कि जो किसान है या मैं बोलूँ कि जो किसान परिवार से बिलोंग करता है, उनके दिमाग में 2-3 चीज़ें चलती। पहली चीज़ तो या तो वो एजुकेशन को बिल्कुल ऐसा समझते कि क्या है, अपने पास खेती है, अपना बच्चा कुछ ना कुछ खेती से कर लेगा। पर मुझे एक चीज़ बताइए, आप आज आपके पास खेती है, बात मैं मान रहा हूँ, पर अगर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर बच्चों का आप पढ़ाओगे नहीं तो मुझे एक चीज़, इस चीज़ का आंसर देना कि समय वो आ गया है आपकी कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं या मैं बोलूँ बच्चा है, अब पेरेंट्स भी काफ़ी अवेयर हो गए हैं। मैं अगर आपसे बोलूँ अगर आपकी बेटी है तो क्या आप बताइए, आप उसकी आज मर्ज़ी के खिलाफ़ शादी करते हैं कि उसकी मर्ज़ी के साथ शादी करते हैं? बिल्कुल सीधा सा आंसर है कि आप उसकी मर्ज़ी के साथ उसकी शादी करते हैं। और वो शादी किससे करना चाहती ये आप खुद भी जानते हैं। वो चाहती कि कोई पढ़ा लिखा हो और वो कहीं जॉब कर रहा हो, फिर जॉब नहीं भी कर रहा हो तो कहीं ना कहीं एटलीस्ट उसका बिज़नेस हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पढ़ाई लिखाई करके जो भी करें, आप बिज़नेस भी करें, आप खेती को बिज़नेस बना सकते हैं, सारी चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आती है जब बच्चों की शादी होती है। और ये हम आम तौर पे आप देख रहे हैं, खास करके जो बच्चे पढ़े नहीं होते हैं, जो बच्चे पढ़ाई लिखाई जिन्होंने नहीं करी, वो बच्चे क्या हो रहे हैं आज की तारीख में दिक्कत में आ रहे हैं। उनको शादी या सगाई के लिए दिक्कत आ रही है। अगर सगाई हो भी जाती है तो समय आने पर सगाई टूट रही है। और जब कारण पता लगाया जाता है तो बोला पढ़ा लिखा नहीं था, इस कारण कहीं ना कहीं हमने छोड़ दिया। ज़रूरी नहीं है कि जॉब करे या जो पढ़ के जो भी किया जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। सबसे बड़ी चीज़ पढ़ाई करना ज़रूरी है। उसके बाद चाहे वो बिज़नेस करे, कुछ भी करे, वो सब चल सकता है। लेकिन उसने अगर पढ़ाई नहीं करी आपके बच्चे ने, तो आप ये मान के चलिए कि आने वाला समय जो है, ये आप खुद भी समझ रहे हैं कि आने वाले समय में मैं कोई ऐसी चीज़ बात नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगे का प्रेडिक्शन नहीं कर रहा हूँ, बस एक आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। सपोज़ कीजिए आपका बच्चा अगर वो आज 4 साल का है, 5 साल का, 8 साल का, 7 साल का, मुझे एक चीज़ बताइए उसकी शादी आप कब करेंगे? हो सकता है कि आप 20 साल के आसपास करें, हो सकता है 18 साल के ऊपर करें, हो सकता है 22 साल में करें। तो मुझे एक चीज़ बताइए, आज जो बच्चा 8 साल का, 7 साल का है, 9 साल का, 10 साल का है, अगर मान लो वो पढ़ाई नहीं करेगा, तो आपको ऐसा लगता है कि जो लड़की पढ़ाई कर रही है वो उस लड़के से शादी कर पाएगी या उससे सगाई कर पाएगी? अगर आपके पास इस चीज़ का जवाब हो तो मुझे ज़रूर देना। वास्तविकता आप खुद भी जानते हैं, मेरा समाज पाटीदार है, उसमें भी ये समस्या आ रही है धीरे धीरे कि पढ़ाई के साथ में दोनों चीज़ें ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है और कहीं ना कहीं सक्षम होना भी ज़रूरी है। आज केवल वो टाइम नहीं रह गया है कि बच्चा केवल सक्षम है या उसके पास बहुत सारा पैसा है या उसके फादर के पास बहुत सारा पैसा है तो कहीं ना कहीं उसके आगे की ज़िंदगी अच्छी जा रही है। क्योंकि शादी ब्याह कहीं ना कहीं ये भी एक जीवन का एक पार्ट है, जीवन का एक अंग है। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि अगर आपके पास बहुत सारा पैसा है, सब कुछ है, पर अगर आपको आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसकी शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो मुझे एक चीज़ बताइए कि उस पैसे का हम क्या करेंगे? तो कहीं ना कहीं सीधा सा मतलब है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए भी, और कहीं ना कहीं ज़रूरी नहीं कि हम उनसे कहीं ना कहीं जो भी करवाएं,
सिर्फ इसलिए भी पढ़ाना है कि इसको एजुकेटेड करना है। दूसरी चीज़, ताकि उसके आने वाले समय में शादी में कोई दिक्कतें नहीं आए, क्योंकि ये बात आप खुद समझ रहे हैं कि आज की तारीख में शादियों में भी दिक्कत आ रही है अगर बच्चा पढ़ा लिखा नहीं। लड़की यही बोलती मुझे पढ़ा लिखा चाहिए, एंड उसका भी सोचना गलत नहीं है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये वीडियो बनाने का आज मेरा 2 मकसद थे। पहले तो मांग और सप्लाई क्या होती है बार बार मैं बोलता हूँ, तो कुछ लोग इस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि आप कैसे करते हैं, क्या करते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, थोड़ा बहुत अगर उसमें आप पढ़ोगे तो उसमें चीज़ें समझ में आती है। दूसरे लोग ये भी पूछते थे कि भरत भाई आप क्या करते हैं इसके अलावा, तो वो क्या करते हो तो मैंने बता दिया कि मैं एज अ टीचर भी हूँ, और उसके अलावा एक कंपनी में एरिया मैनेजर भी हूँ, जहाँ कोरोना के बाद मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि कोरोना आया और सबसे पहले जो एजुकेशन लाइन है वही सबसे पहले कहीं ना कहीं दिक्कत में आई थी। 3 काम मैं करता हूँ कहीं ना कहीं, और आप लोगों से मैं जब से जुड़ा हूँ मैं आपसे बता सकता हूँ कि एक मैं बोल सकता हूँ कि एक सोशल वर्क, जो सामाजिक कार्य, कहीं ना कहीं मुझे वो भी अच्छा लग रहा है कि आप सब लोगों को मैं कहीं ना कहीं वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसमें ऐसा नहीं कि मेरा बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट बिल्कुल है। सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो मुझे यही लगता है कि जब आप लोग मुझसे मिलते हो, जो खुशी मैं आपके चेहरों पर देखता हूँ, और जब आप मुझसे बोलते हो कि यार कभी हमारे एरिया में आना, मतलब इतना अच्छा लगता है उस चीज़ को सुनते हुए, क्योंकि मुझे लगता है कि यार पैसा हम कमाएंगे, सब कुछ होगा, लेकिन इस चीज़, ये जो चीज़ मुझे मिल रही है आप लोगों से, ये जो मुझे आपसे प्यार मिल रहा है, मुझे लगता है कि वो मैं पैसे से भी नहीं खरीद सकता हूँ। ऐसा मुझे लगता है। बाकी तो सबकी अपनी अपनी एक सोच रहती है। तो मैं जब तक कर रहा हूँ, जब तक सब कुछ ठीक है, मैं करता जाऊँगा, आप लोगों को वीडियो लेके आऊँगा। और एक छोटा सा वीडियो नहीं है, बहुत लंबा वीडियो था ये वाला, सिर्फ इसलिए बनाया मैंने ताकि आप अपने बच्चों को पढ़ाइए और उनको एजुकेटेड भी कीजिए। ज़रूर नहीं कि हम उनको जॉब के लिए ही पढ़ाएँ, वो खुद का बिज़नेस भी कर सकते हैं, लेकिन मेरा सोचना है कि अपने समय को, आने वाला समय जो है वो बड़ा फास्ट होने वाला, बड़ा तेज़ होने वाला है, जिसमें उसको पढ़ना ज़रूरी है। वो अगर नहीं पढ़ा तो मैं लिख के बोलता हूँ वो पिछड़ जाएगा। इस बात से भले नहीं पिछड़े वो कि उसके पास पैसा बहुत कुछ होगा, गाड़ियाँ होगी, शोहरत होगा, सब कुछ हो सकता है, बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो एक आने वाला समय जो है, उस समय में कहीं ना कहीं पढ़ाई की सिर्फ इस वैल्यू को नहीं देखा जाएगा कितना पैसा क्या है, उसमें कहीं ना कहीं आपको आपके वंश को आगे बढ़ाने के लिए, आपके बच्चे की शादी करने के लिए भी उसको आज पढ़ाना आपको ज़रूरी पड़ेगा। हालांकि अगर वीडियो अच्छा लगता है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स भी कीजिएगा। और जो कनाडिया एरिया के आसपास, कनाडिया जो एरिया है उसके आसपास अगर कोई बच्चा है या उसके पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मेरा आपसे निवेदन है कि अगर जो बच्चा आसपास का है तो हमारी कोचिंग क्लास A to Z कोचिंग क्लास नाम से हमारी कोचिंग क्लास है, जहां हम लोग 8 से 9 टीचर हैं, बड़ा सेपरेटली पढ़ाया जाता है, हर एक क्लास सेपरेटली लगती है। तो जिनको एडमिशन लेना है, अभी क्लासेस चालू है, आप चाहे तो एडमिशन भी ले सकते हैं। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।